the training on the topic of the impact of AI on the teaching learning process. I'm affiliated with GC University Lahore since 2008, and currently I'm working here as assistant professor in Department of Artificial Intelligence. So we'll start with a brief introduction of mine. I joined GC University in 2008, as I just informed you. And particularly, I am a dedicated student of computer sciences and since from the very beginning of my education, right from the matriculation, I'm a student of computer sciences as I did my matriculation with computer, and then honors with computer science, MPhil and PhD. But in computer sciences, my area of research and the area of specialization is artificial intelligence and particularly natural language processing. So I have published and contributed in around 15 research papers in various international journals and national international conferences. And on my research papers, I have received more than 150 independent citations from renowned scholars and researchers worldwide. Is 30 MS level theses, and currently I'm supervising 3 more along with 2 PhD theses. Apart from that, I have supervised so far more than 100 BS level projects, which are related with the domain of artificial intelligence. And among those projects, we have worked on various domains from robotics till text summarization and application of natural language processing in computer vision domain. And in computer vision domain, we have worked on to provide aid to those persons who are partially or completely blind. And we are also working on VR technology and augmented reality technology. So current problems and areas जिनके ऊपर अभी मैं काम कर रहा हूँ, that are intelligent Quranic search engine. That is one of my basic research problem जो यहाँ पर GC यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. Apart from that, हम social media and depression analysis करने की कोशिश कर रहे हैं on the basis of social media profiles. And उसके अलावा जो प्रोडक्ट रिव्यूज होते हैं, आप दराज वगैरह से, OLX से, डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे जब शॉपिंग करते हैं और कस्टमर्स अपने फीडबैक वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सो उनसे हम उन प्रोडक्ट रिव्यूज की बेस के ऊपर उन प्रोडक्ट्स के सिमेंटिक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं. एंड देन डिजीज डिटेक्शन एंड प्रिडिक्शन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और वेरियस डिजीज लाइक कैंसर के ऊपर और ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर हम काफी काम यहाँ पर GC यूनिवर्सिटी के अंदर कर चुके हैं. So that was a brief and quick introduction of mine, just to share these thoughts with you, ताकि थोड़ा सा रेलिवेंसी का आपको आइडिया हो सके कि इस डोमेन के अंदर पिछले 15-16 साल से हम काम कर रहे हैं. एंड थोड़ी सी कोशिश हम यहाँ पर यही कर रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्या है, और वाई जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको इस बात की क्यों ज़रूरत है कि हम AI के बारे में बातचीत करें और उनको AI के बारे में अवेयर करने की और इक्विप करने की कोशिश कर रहे हैं. So I have selected a question to begin our discussion, which is some of you might ask about this, and this is a very common question we used to hear on daily basis, that in 50 years from now, will there be a human or a robot teaching? So that is kind of question जो यहाँ पर जब हम AI की रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमसे स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, डिफरेंट पर्सन्स पूछ रहे होते हैं, एंड समटाइम्स दिस क्वेश्चंस कम्स इनटू आवर माइंड. और जितनी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है उस डेवलपमेंट को देखते हुए दैट इज काइंड ऑफ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन जो जहन के अंदर अक्सर आता है. But my take on this question is because instead of asking this question, we should begin our discussion with the question that what kind of combination of human and artificial intelligence will be able to draw on in the future to provide teaching of the very best quality. So this is not a question for me that will AI agents or the robots will be able to supersede one day and they will be start teaching in universities and colleges and schools
या 50 साल के बाद हम ह्यूमन ही होंगे जो यहाँ पर। और हमें तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है वो ये होता है कि जब इतनी सारी एआई यहाँ पर आ जाएगी और इतनी इंटेलिजेंट मशीन्स यहाँ पर आ जाएंगी, तो क्या एआई विल स्टार्ट ईटिंग आवर जॉब्स? तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं उनकी जॉब का और जॉब मार्केट का और इस तरह के सारे कामों का क्या होगा? क्या वो सारी रिप्लेस हो जाएंगी? सो मेरे ख्याल में ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। माइट बी टुडे विल नॉट हैव मच टाइम कि हम इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर ये क्वेश्चन रेलिवेंट क्यों नहीं है। बट क्विकली सेइंग दिस के मेरे ख्याल में ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी अप्रोचेस हो सकती हैं कंबाइनिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिनकी बेसिस के ऊपर हम बेटर टीचिंग मेथडोलॉजीज प्रोवाइड कर सकें। हम अपने स्टूडेंट्स को, यंगस्टर्स को जो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, हमारे पास क्लासरूम्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे पास आते हैं, हम उनको कैसे वेल इक्विप कर सकते हैं, कैसे उनको ट्रेन कर सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जिस टेक्नोलॉजी की बेस के लेट 40 50 ईयर्स 100 ईयर्स उन्होंने ग्रो करना है, उन्होंने अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। सो द आंसर is by adopting artificial intelligence in our teaching, in all the methodologies and all the actions we are doing today, जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये सारे का सारा काम कर सकते हैं। सो a simple question कि AI important क्यों है? I have used the quotations and the statistics from the World Economic Forum, and by World Economic Forum, AI and machine learning jobs जो हैं they are going to grow by 40% every year, and by 2027 there will be an increase of 1 million new jobs in the market. So जब हम ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या एआई हमें रिप्लेस कर देगी, क्या जब अब हम देख रहे हैं इतनी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या ह्यूमन टीचर्स की जगह पर एआई टीचर्स ले लेंगे? तो इस क्वेश्चन को क्विकली अगर मैं आंसर करना चाहूंगा तो मैं ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट प्रेजेंट कर दूंगा जो ये कहती है कि ह्यूमंस के लिए बाय 2027 इन 3 years 1 million न्यू जॉब्स जो हैं वो क्रिएट होंगी, अपार्ट फ्रॉम दोज जॉब्स जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड नाउ यू माइट बी आस्किंग क्वेश्चन दैट अगर हम ग्लोबली बात कर रहे हैं तो उसमें 6 7 अरब की 8 अरब की जो दुनिया की आबादी है उसमें 1 million जॉब्स जो हैं वो कितनी मैटर करती हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई ऑन दिस पॉइंट कि ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है ये जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में है, इट इज अबाउट वन कंट्री। सो यूनाइटेड स्टेट की जितनी पॉपुलेशन को अगर हम कहें कि 1 million न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो बाकी वर्ल्ड के अंदर जितनी जॉब्स क्रिएट होंगी दैट इज अ मैसिव मैसिव स्केल ऑफ जॉब्स जो न्यू जॉब मार्केट क्रिएट हो रही है। बट ऑब्वियसली उस जॉब मार्केट के अंदर स्कोप, चांसेस उन्हीं लोगों के पास होंगे, वही लोग उस जॉब मार्केट के अंदर सरवाइव कर सकेंगे जो एआई अवेयर होंगे, जो एआई के ऊपर ट्रेन हो चुके होंगे, जिनको बेसिक नॉलेज होगी कि एआई मशीन्स क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। सो दैट इज व्हाई आई थिंक दैट दिस ट्रेनिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर each and every teacher working at junior school level or high school level or colleges and universities level. So किसी भी level के ऊपर, particularly in countries like Pakistan, जितने भी teachers काम कर रहे हैं, they should be well equipped and should be well versed about artificial intelligence. ना सिर्फ ये कि उनको ये मालूम हो कि AI का मतलब क्या है, बल्कि उनको ये भी मालूम हो कि मेजर AI प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं फॉर ease of our tasks. So we'll start with a definition. Artificial intelligence, some of making intelligent machines. And there is another definition proposed by Leslie in 2021, which states that AI systems are algorithmic models that carry out cognitive or perceptual functions in the world that were previously reserved for thinking, judging, and reasoning human beings. So basically AI system को in short हम कह सकते हैं कि AI system जितनी भी human working of human cognitive working है, cognitive processing है, उसको यूज करते हुए
उस कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बेस के ऊपर जब हम सिस्टम डेवलप करते हैं, जब हम ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उस कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, जो ह्यूमन के कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उनको लेकर उनकी सिमुलेशन करते हैं, तो ऐसी मशीन्स को हम इंटेलिजेंट मशीन्स कहते हैं. Although I'm not maybe not a right person or a relevant person to talk about human psychology, because उसके लिए psychology के experts हमारे पास मौजूद होते हैं जो इसके बारे में बात करते हैं. But being an AI person, AI specialist, I know one thing, कि हम कोई भी मशीन ऐसी नहीं बना सकते इसके बिहाइंड हमारे पास ह्यूमन के कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल मॉडल्स एंड थ्योरीज काम ना कर रही हैं. सो जितनी भी मशीन्स बन रही हैं, जितने भी एल्गोरिदम्स डेवलप हो रहे हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स बन रहे हैं, वो जो भी वर्किंग करते हैं, उस वर्किंग उन एल्गोरिदम्स के पीछे ह्यूमन मेंटालिटी, ह्यूमन अप्रोच ऑफ डूइंग थिंग्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होती है और इनकॉर्पोरेटेड होती है. So there are some myths about AI. So I'll start with some positive things that is about it. AI is about providing text to speech and speech to text like systems. AI की बेस के ऊपर हम कस्टमाइज शॉपिंग सिस्टम्स हैं वो बना सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, आप दराज के ऊपर जाते हैं, दराज आपको कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है. आप अमेजोन के ऊपर जाते हैं, आप अली बाबा के ऊपर जाते हैं, डिफरेंट जो शॉपिंग साइट्स हैं आप उनके ऊपर जाते हैं. आप वंस उनसे कोई चीज़ परचेज करते हैं, वो आपकी रिकमेंडेशन, आपकी पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग को नोट डाउन करता है और उसके बेस के ऊपर वो आपको रिकमेंड करता है कि अब आप कौन सी प्रोडक्ट के अंदर सकते हैं. आप अगर फेसबुक यूज करते हैं या सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हैं, यू माइट हैव सीन कि अक्सर वो आपको सजेशंस दे रहा होता है, सजेशंस ऑफ फ्रेंड्स. वो आपको सजेस्ट करता है कि कौन लोग आपके दोस्त हो सकते हैं. ऑब्वियसली वो आपके सोशल नेटवर्क को सर्च आउट करता है, उसको एनालाइज करता है और उसकी बेस के ऊपर आपका फ्रेंड सर्कल सजेस्ट कर रहा होता है. आपको पोस्ट एंड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट सजेस्ट हो रही होती हैं. ये सारी की सारी कस्टमर शॉपिंग एंड सजेशन बेस्ड सिस्टम्स जो हैं, ये सारे एआई एल्गोरिथम्स की बेस के ऊपर जनरेट होते हैं. रोबोटिक फार्मिंग इस फ्रॉड डिटेक्शन के अंदर एआई सिस्टम्स काम कर रहे हैं. एआई इज अबाउट फॉर्मल लैंग्वेज ट्रांसलेशन. आपने गूगल ट्रांसलेटर का नाम सुना होगा, यूज किया होगा. दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ट्रांसलेशन. मैपिंग एंड नेविगेशन के जो सिस्टम्स हैं, आप अगर कहीं पर जाते हैं और आपने गूगल मैप ओपन किया हुआ है और वो आपको सजेस्ट करता है कि आपके पास पाथ्स कौन कौन सी हैं और उनमें से बेस्ट पाथ आपके लिए कौन सी हो सकती है, शॉर्टेस्ट पाथ बेस्ड अपॉन ट्रैफिक कंडीशन एंड अदर कंडीशंस, वो आपके लिए सजेस्ट करता है. एंड वन बेसिक एग्जांपल, इस वक्त मैंने हेडसेट जो है वो हेडफोन्स पहने हुए हैं और मेरी आवाज सुन रहे होंगे एंड होपफुली क्लियर आवाज आप तक पहुंच रही होगी. बट यू माइट कैन नॉट सी कि यहाँ पर मैं जिस ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर फैन भी ऑन है. आउटसाइड मेरे ऑफिस जो है वो, मैं यूनिवर्सिटी में अपने ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ पर बाहर जो है वो स्टूडेंट्स भी घूम फिर रहे हैं, उनके शोर की आवाजें भी आ रही हैं. बट उनमें से कोई भी आवाज जो है वो आप तक नहीं पहुंच रही, बिकॉज जो ये हेडसेट भी मैंने पहना हुआ है, जो हेडफोन्स मेरे पास मौजूद हैं, इनके अंदर भी एआई सिस्टम काम कर रहा है जो मेरी आवाज को और बाकी आवाजें आपसे उनको डिफरेंशिएट कर रहा है, वो नॉइज को रिमूव कर रहा है और सिर्फ मेरी क्लियर वॉइस जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है. सो इट इज ऑलरेडी इन आवर लाइव्स एंड इंडस्ट्रीज, जहां पर भी हम देखते हैं वहां पर मौजूद है. सर्टेन थिंग्स जो एआई के बारे में कहना दुरुस्त नहीं है, विच इज these things are not about artificial intelligence. So one thing which is artificial intelligence is not alive. So we cannot say that any day AI agents can become. There is no possibility of killer robots. So माइट भी आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हों जिन्होंने टर्मिनेटर मूवी या ऐसी रोबोटिक मूवीज या वीडियोस देखी हों जहाँ पर ये बताया जा रहा होता है या क्लेम किया जा रहा होता है दैट किलर रोबोट्स जो हैं वो बन सकते हैं एंड वन डे मशीन कैन टेक ओवर दिस वर्ल्ड और वो दुनिया से मानव जाति का खात्मा कर सकते हैं. सो ऐसी चीजें जो हैं वो पॉसिबल नहीं हैं. एंड वी कैन डिस्कस, अगर आप में से किसी की थ्योरी हो, वी कैन टॉक इट अबाउट talk about it later on. क्यों पॉसिबल नहीं है, क्यों किलर रोबोट्स. इन शॉर्ट मैं सिर्फ इतना फिलहाल यहाँ पर कहूंगा कि जब भी हम मशीन्स बना रहे होते हैं या एल्गोरिथम्स डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उन एल्गोरिथम्स को डिजाइन करने के बिहाइंड कोई ना कोई फिलॉसफी होती है.
कोई ना कोई हमारा पर्पस होता है जिसकी वजह से हम एल्गोरिदम्स लिखते हैं। सो वो जो एल्गोरिदम्स हम बना रहे हैं, जो एल्गोरिदम्स हम प्रोग्राम करते हैं, उन प्रोग्राम में इंटेंशन मौजूद नहीं होती कि हमने कोई किलर रोबोट्स बनाने हैं। सो एआई इज नॉट अबाउट के जो बहुत हाई टेक लोग होंगे, बाउंड्रीज की भी होंगी, सिर्फ वही लोग एआई को यूज कर सकते हैं। So AI, one of I can use some AI products, so you can use those products as well. So आपको करना है, देखिए आप प्रोडक्ट्स का चाहिए होना चाहिए few minutes and in quite a few hours. तो बहुत ज़्यादा लंबे our cell phones, AI systems, even AI based systems जो हैं वो, for example आप करते हैं और upon multiple wrong attempts, 2 या 3 है, तो वो बेसिक काइंड ऑफ इंटेलिजेंस जो उस मशीन के अंदर, उस सिस्टम के अंदर मौजूद है कि रॉन्ग अटेम्प्ट्स हो रही है, तो अल्टीमेटली सिस्टम को जो है वो लॉक कर दो, उस एटीएम कार्ड को या अकाउंट को ब्लॉक कर दो, ताकि अगर यहाँ पर कोई थेफ्ट हुई भी है, कोई फ्रॉड होने की कोशिश किया जा सके। ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, बट एक बेसिक लेवल की इंटेलिजेंस जो है वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। So the most important thing about artificial intelligence that each and every one of us must understand is that AI is already there and it is not going anywhere. So the sooner we understand this concept that AI is not going anywhere, the longer we will remain in the business, the longer we will remain in the game. So अगर हम इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर, तो हम अपने कबूतर जो होते हैं, जब बिल्ली उनके करीब आती है तो अक्सर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, दे अज्यूम कि बिल्ली जो है वो शायद यहाँ पर मौजूद नहीं है और उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो एआई जिस जिस रैपिड ग्रोथ के साथ, जिस फोर्स के साथ मार्केट के अंदर आ रही है, हम आंखें बंद करके ये नहीं कह सकते कि इवेंचुअली वन डे एआई विल वैनिश और हम बैक टू नॉर्मल लाइफ वापस चले जाएंगे। एआई ऑलरेडी आ चुकी है और नेक्स्ट एरा जो है दैट इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ये अब रोल बैक नहीं हो सकता, ये अब वापस नहीं जा सकता। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें रियल वर्ल्ड के अंदर, सो स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है। यू कैन कंट्रोल all of your home appliances from your mobile device, from a simple application. आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, नेटवर्क्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हुए आप देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर क्या एक्टिविटीज चल रही हैं। आपने लाइट्स कंट्रोल करनी है, आपने म्यूजिक कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, ईच एंड एवरीथिंग आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। यू कैन लेट योर एआई एप्लीकेशन डिसाइड के इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करना है। सो वी हैव स्मार्ट वॉचेस एंड किसी जमाने में बहुत बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे, देन सेल फोन्स आए, और अब वो सारी चीजें जो आप एक कंप्यूटर के ऊपर या सेल फोन के ऊपर कर सकते हैं, दैट इज इन योर हैंड। आप एक रिस्ट वॉच की सूरत में इसको पहन सकते हैं, यू कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन कम्युनिकेट विद अदर्स। आप अपने जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं, आप किसी से कॉल पे बात कर सकते हैं। सो वो सारे का सारा कुछ स्मार्ट वॉचेस की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इवन वी हैव स्मार्ट कॉन्टेक्ट लेंस, जो हमारे जैसे अब जो लोग ऐनक लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, आई डोंट नो अगर यहाँ पर ऑडियंस के अंदर आप जो प्रोफेसर साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्टेक्ट लेंसेज या ग्लासेस का आप इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो दूर की ऐनक लगा रहे होते हैं, कुछ नजदीक की ऐनक लगा रहे होते हैं। सो ये कॉन्टेक्ट लेंस जो हैं वो एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके मुताबिक जो एंगल्स हैं वो चेंज करते रहते हैं, वो उसके मुताबिक लाइट जो है वो कम या ज्यादा
करते रहते हैं। सो ऐसे इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। वी हैव रोबोट्स इन रियल वर्ल्ड जो काम कर रहे हैं। There is one example of this, Zia Xiaoming robot, which is world first female humanoid news anchor, and she can read news live just like human news anchors. इसके अलावा नर्सिंग के रोबोट्स जो हैं वो थाई हॉस्पिटल्स के अंदर बन चुके हैं, एंड दीज रोबोट्स आर प्रैक्टिकली बीइंग यूज्ड। उसके अलावा चाइना एंड जापान के अंदर वेटर रोबोट्स जो हैं वो आ चुके हैं, शेफ रोबोट्स बन चुके हैं। सो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर इस हवाले से हो चुका है। वी हैव ड्रोन एंड ऑटो पायलट्स। आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, ऑटो ड्राइवर कार है। आपने जस्ट गाड़ी के अंदर बैठना है एंड यू जस्ट हैव टू टेल द लोकेशन और वो आपको खुद ड्राइव करके ले जाएगी, खुद सेलेक्ट करेगी आपके टेस्ट के मुताबिक। कार की लाइट्स को डिम करना है, ऑन करना है, म्यूजिक प्ले करना है, डेस्टिनेशन के ऊपर आपको पहुंचाना है, आपके कंफर्ट का ख्याल करते हुए एसी या जो हीटर है उसको ऑन करना है, उसकी स्पीड को मैनेज करना है। ये सारे काम ऑटो पायलट्स के अंदर या ऑटो पायलट्स नॉर्मली ड्रोन्स के अंदर या प्लेन्स के अंदर ऑटो पायलट मोड यूज होते हैं। इस तरह से ड्रोन्स हैं। किसी दौर में हमारे पास जो हैं वो पर्सन होते थे, फोटोग्राफर्स होते थे। अब ड्रोन जो है वो उसकी जगह पर हैं। दे कैन कलेक्ट फोटोज और कवरेज करनी है, कौन सा इवेंट, कौन सी हैपनिंग जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है उसके मुताबिक कवरेज करनी है। दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा इमेज रिकॉग्निशन की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं, एंड विल डिस्कस सम ऑफ दीज थिंग्स लेटर ऑन इन द लेक्चर टुडे। और हमने एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करना है, प्लांट्स को रिकॉग्नाइज करना है। हमने ये रिकॉग्नाइज करना है कि प्लांट्स जो हैं उनको कोई डिजीज तो नहीं है। लाइक आई एम सुपरवाइजिंग अ प्रोजेक्ट और उसके अंदर हम कर ये रहे हैं कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उन क्रॉप्स की बेस के ऊपर ये आइडेंटिफिकेशन की जाए कि इन क्रॉप्स के ऊपर कोई डिजीज तो हमलावर नहीं हुई भी। कोई जैसे वो बचपन के अंदर हम सुना करते थे, पीटीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आया करता था कि कपास के ऊपर सुंडियों ने हमला कर दिया, अमेरिकन सुंडी ने हमला कर दिया एंड ऑल दैट। सो इस किस्म के जो वल्नरेबिलिटीज हैं प्लांट्स की, उनको जज करना और उनके लिए फिर रेमेडीज सजेस्ट करना फार्मर के लिए ऑन ए सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन। फार्मर्स जो हैं तो जस्ट इस बात को चेक कर सकते हैं कि प्लांट को कोई डिजीज तो नहीं है, और ना सिर्फ ये कि ये चेक कर सकते हैं कि प्लांट को कोई डिजीज है या नहीं, वो उसकी रेमेडीज जो होती हैं वो उसको फौरी तौर पर सजेस्ट कर सकता है के ऊपर, इमीडिएट बेसिस के ऊपर या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए कौन कौन सी रेमेडीज, कौन कौन से स्टेप्स वो ले सकते हैं। इसके अलावा ये इमेज रिकॉग्निशन के अंदर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो हमारे जो इमेजेस हैं उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने कोई भी टेक्स्ट, कोई इक्वेशन आपने देखी है, उस इक्वेशन को वो ट्रांसलेट कर देंगे। हैं जैसे बार कोड्स हैं और क्यूआर कोड्स हैं, उन कोड्स को स्कैन कर सकते हैं और उसकी मदद से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। ये सारी एप्लीकेशन इमेज रिकॉग्निशन सिस्टम्स के अंदर मौजूद है, एप्लीकेशन एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। And the last example we have today is about smart washrooms. Might be this concept will be a bit new for you. इस वक्त एक कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर एक न्यू कॉन्सेप्ट मौजूद है, which is of smart washrooms. Like washrooms की हालत पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर तो आई थिंक वी शुड नॉट इवन बी डिस्कसिंग अबाउट इट, जितनी बुरी हालत होती है। बट इवन हम जब अपनी प्राइवेट प्लेसेस के ऊपर भी यूज करते हैं तो वहां पर ओडोर के मसले होते हैं, स्मेल आ रही होती है, वहां पर ये मसले होते हैं कि अक्सर वॉशरूम्स के अंदर सोप खत्म हो गया है या टूथपेस्ट खत्म हो गया है। सो जब हम जाते हैं तो उस वक्त हमें याद आता है कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तब पानी का टेम्परेचर है वो अक्सर पाकिस्तान और पर्टिकुलरली लाहौर के अंदर जितनी गर्मी पड़ रही है वो हमें खुद कंट्रोल एंड मैनेज करना पड़ रहा होता है। एंड मल्टीपल काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पर होती हैं। एंड यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंसर्स मौजूद होते हैं जो ओवरऑल पूरे इन्वायरमेंट को स्कैन करते हैं, उसको सेंस करते हैं और उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। सो माय क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस particular application is that if there are people that can use AI in washrooms, my question is why we cannot use artificial intelligence into our classrooms. So the
better place of using artificial intelligence is not into the washroom, rather हमारे क्लासरूम इतनी उनकी सैंक्टिटी मौजूद है, इतनी सैक्रेडनेस उसके अंदर मौजूद है कि कम से कम हम वहां पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो इफ AI products can keep thinking and analysis can do analysis about कि वॉशरूम की लाइट कब ऑन होनी चाहिए और कब ऑफ होनी चाहिए और उसके अंदर पानी का टेम्परेचर जो है वो कब कितना होना चाहिए. I mean, हम अपने क्लासरूम्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं to analyze and to think about it कि अपनी क्लास के हमने करनी है तो हम इस बात को एनालाइज करें कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट कितनी डिटेल में उनको समझाना है. हम इस बात को एनालाइज करें कि जो कॉन्सेप्ट हम उन्हें समझाना चाह रहे हैं वो इतने सिंपलेस्ट तरीके से हम उन्हें समझाएं कि हर किसी के समझ में आ रहा हो. हम उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो जस्ट आंसर की करेक्टनेस की बेस के ऊपर या उन्होंने कितना मेमोराइज किया हुआ है इसकी बेस कर सकते हूं कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में वो प्रॉब्लम पेपर्स चेक करते हैं. हमारे पास एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स एंड क्विज़ेस और इस तरह की वो चेक कर रहे होते हैं. तो चेक करते हुए हम सिर्फ इस बात को अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्वेश्चन है उसका आंसर ठीक है या उसका आंसर ठीक नहीं है. लेकिन हम कभी भी इस बात को एक जनरल ओवरव्यू तो हम लेते हैं, लेकिन हम इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा सोचते नहीं है कि अगर किसी स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया है तो उसकी पॉसिबल रीजंस क्या हो सकती हैं. बीइंग ए टीचर, वन पॉसिबल रीजन दैट कैन कम इनटू आवर माइंड इज कि स्टूडेंट ने प्रिपरेशन नहीं की, स्टूडेंट इज नॉट सीरियस. एक और रीजन भी तो हो सकती है ना कि वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को कंप्लीटली समझ में नहीं आया. इस बात का एनालिसिस करने के लिए अगर हम हर स्टूडेंट के हर क्वेश्चन के ऊपर वो सोचना शुरू कर दें कि इसको प्रॉब्लम कहाँ पर था और क्यों ये प्रॉब्लम आया और क्यों उसने स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया या सही आंसर नहीं दिया, तो इसके लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है विद आर बर्डन, जितना प्रेशर हमारे पास एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर होता है, यहाँ पर काम का जितना बर्डन होता है, तो उस सारे बर्डन के साथ आई डोंट थिंक सो कि एनी एनालिसिस जो है वो सिर्फ एक पेपर या एक टेस्ट चेक करते हुए हम कर रहे हो. बट व्हाट इफ हम यही जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने, उनके जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, ये आंसर स्क्रिप्ट किसी कंप्यूटर एजेंट को, किसी इंटेलिजेंट एजेंट को प्रोवाइड कर दें और लेट द एजेंट डिसाइड कि वो इस बात को एनालिसिस करे कि स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन था उसका सही आंसर क्या था और स्टूडेंट ने अगर आंसर दिया तो वो सही है या नहीं. एक तो उसकी असेसमेंट वो एजेंट कर दे और उसके साथ साथ वो एनालाइज करके क्लास के अंदर प्रॉब्लमेटिक एरियाज क्या हैं. क्या कोई एक स्टूडेंट है जिसको मुश्किल हो रही है और जो मुश्किल हो रही है वो किस लेवल की है? क्या वो प्रॉब्लम सिर्फ मेमोराइज ना करने का प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम ज्यादा डीपर है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं हुई है. सो ये सारे के सारे काम और इस तरह के और बहुत सारे काम हैं जो AI एजेंट्स हमारे लिए कर सकते हैं. और इस ट्रेनिंग का बेसिक पर्पस भी कुछ क्वेश्चंस आप प्रोफेसर साहिबान के लिए जनरेट करना है, आपके ब्रेन के अंदर ये क्वेश्चन जनरेट करना है कि हम इन AI प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. और उसके बाद आपको ये अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है कि वो कौन से इनको जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम यूज नहीं करते, लेकिन वो बहुत सारे हमारे काम आसान कर सकते हैं. अगर हम अपना बर्डन शिफ्ट करना चाहें तो हम अपनी जॉब्स को जो डेली बेसिस के ऊपर, रूटीन बेसिस के ऊपर हम बहुत सारे काम करते हैं, उन कामों को हम बड़ी हद तक अपने लिए आसान बना सकते हैं. सो जब हम AI को एजुकेशन के अंदर यूटिलाइज करने की बात करते हैं, द प्रेजेंट केस इज जिसके अंदर रिस्क एक इन्वॉल्व हो सकता है एंड हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशंस हो रही होती हैं दैट हाउ डू वी स्टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम चीटिंग. बिकॉज अगर हम एज ए टीचर इन टूल्स को यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट स्टॉप आवर स्टूडेंट्स टू यूज दीज टूल्स, के वो इन टूल्स को यूज करें और इन टूल्स को यूज करके वो भी वही काम कर सकते हो जो काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं. आई हैव रिसीव द मैसेज के वॉइस के अंदर थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, सो प्लीज कंफर्म के वॉइस जो है वो आ रही है या कोई प्रॉब्लम है.
if you can please tell me. Can you please confirm that if there is an issue in voice या clear है voice? जी सर, वॉइस क्लियर है आपकी, कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू। सो प्रेजेंट में ये क्वेश्चन अक्सर यहाँ पर हमसे हो रहा होता है कि स्टूडेंट्स भी उन टूल्स को यूज कर सकते हैं। सो अगर स्टूडेंट्स उन टूल को यूज करते हैं और वो उन टूल्स को यूज करते हुए चीटिंग करते हैं, सो इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ दीज टूल्स के जो स्टूडेंट्स को चीटिंग सिखा रहा है या चीटिंग करवा रहा है उनसे? So that is one question and might be one potential risk of using these tools. But इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। वो एक अपॉर्चुनिटी तो ये है कि माइट बी वी शुड थिंक अबाउट चेंजिंग द टाइप ऑफ असाइनमेंट्स जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं। इंस्टेड ऑफ हम यहाँ पर जो बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ के हम किसी स्टूडेंट को ये असाइनमेंट दें या ये क्वेश्चन करें या इस बात की असेसमेंट करें कि हम उनसे पूछें कि व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दैट, कि वो जस्ट नॉलेज को रिप्रोड्यूस कर दें। क्योंकि अगर नॉलेज को जस्ट रिप्रोड्यूस करना है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि स्टूडेंट्स चीज़ों को यूज कर रहे हैं और वो सर्च कर रहे हैं और जस्ट वो जो लिखा हुआ है उसको अंडरस्टैंडिंग उनको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर इसके बजाय हम स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स दें, वो प्रॉब्लम इस नेचर के हों कि जहां पर उन्होंने नॉलेज रिप्रोड्यूस करने के बजाय उसको यूज करना है इनटू सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स, तो माइट भी ये चीटिंग के केसेस जो हैं या चीटिंग की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। सो जब टेक्नोलॉजीज न्यू आती हैं, न्यू चीजें हमारे पास आ रही होती हैं, तो माइट भी हमें थोड़ी सी अपनी डायरेक्शंस को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, अपनी स्ट्रेटजीज को रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। सो आई थिंक दैट इज द टाइम कि जहां पर अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा हो तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में हम कुछ स्ट्रेटजी होते हैं। सेकेंडली, अपॉर्चुनिटी हमारे पास अवेलेबल है कि हम उन टूल्स की बेस के ऊपर जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द रिस्क वी हैव अपॉर्चुनिटीज एज वेल। सो पहले जो चीजें हम स्टूडेंट्स को माइट भी 1 साल लगाकर सिखाते थे, अब इन टूल्स की मदद से ये पॉसिबल हो सकता है कि उतना ही सिलेबस, उतनी ही चीजें हम उनको 1 महीने के अंदर कवर अप करवा सकते हैं। सेकेंडली, एक रिस्क फ्यूचर के अंदर हो सकता है कि एआई माइट बी प्लेस टीचर्स, ऑल्दो नॉट एक रिस्क, पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। सो अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास मौजूद है कि हम जो एजुकेशन के मेथड्स हैं, मेथोडोलॉजीज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको रीथिंक या रिवाइज करने के बारे में सोच सकते हैं। बट यहाँ पर चूंकि हम पॉलिसी मेकिंग की अभी बात नहीं कर रहे, सो हम इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा फोकस जो है वो पर्टिकुलरली इस एरिया के अंदर रहेगा कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं लर्निंग प्रोसेस को इंप्रूव करने की, वो अपॉर्चुनिटीज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो एक में और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर यूज करना है, तो इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर एआई को यूज करने के 3 डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज टू लर्न विद एआई। यहाँ पर एआई को हम यूज कर सकते हैं टू सपोर्ट आवर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। हमारे पास टीचिंग लर्निंग फेसिंग टूल्स मौजूद हैं, लर्नर फेसिंग टूल्स मौजूद हैं, सिस्टम फेसिंग टूल्स मौजूद हैं। सो टीचर help सकते हैं into doing different kind of tasks। लर्नर फेसिंग टूल्स जो हैं वो ऐसे टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प आउट कर सकते हैं कि उन्होंने अपने टास्क को कैसे रैपिडली कंप्लीट करना है। और सिस्टम फेसिंग टूल हो सकते हैं जो ओवरऑल हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर एजुकेशन सेक्टर को ओवरऑल इंप्रूव करने के लिए काम कर सकते हैं, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं और इस सकते हैं। सेकेंड फेज इज लर्निंग फॉर एआई। ये काम स्टूडेंट्स को हम बीइंग ए टीचर अपनी अपनी स्टेज के ऊपर स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकते हैं अबाउट के फ्यूचर जनरेशंस जितनी भी हैं, फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज जितनी भी हैं,
उसके अंदर अगर हम अवेयर नहीं होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई प्रोडक्ट्स के बारे में, अल्टीमेटली विल नॉट बी एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। सो अगर हम इसको अभी से अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे दैट दे स्टार्ट यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स, तो जब उनकी जॉब मार्केट में जाने की बारी आएगी वो वेल इक्विप्ड होंगे। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि दुनिया हमारे इंतजार के अंदर बैठी रहेगी कि पाकिस्तान जब तक एआई को यूज करने नहीं, वक्त तक हमने डेवलपमेंट नहीं करनी। पूरी दुनिया अपनी पेस के साथ और बहुत फास्ट पेस के साथ प्रोग्रेस करने में लगी हुई है। सो अगर हम उस पेस को फॉलो नहीं करेंगे, उस पेस के साथ काम नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान हमारी स्टूडेंट्स का होगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशंस का होगा। सो पीछे हम रहेंगे अगर हम यूज नहीं करेंगे। सो सिर्फ हमें लर्निंग विद एआई नहीं करनी, बल्कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है टू लर्न फॉर एआई। एआई प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, एआई प्रोडक्ट्स बनानी कैसे हैं, एआई प्रोडक्ट्स को यूज कैसे करना है। सो इसके लिए जो रेलेवेंट कोर्सेज हैं, जो रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज हैं, वो हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और सिखाने की कोशिश करें। एंड थर्ड फेज जो हमारे पास आती है, दैट इज एक्चुअली लर्निंग एआई। ऑब्वियसली कॉलेजेस लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स का शायद उतना ज्यादा कैलिबर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान के ट्रेंड्स को हम देखें तो शायद नहीं होता कि जहां पर वो एक्चुअली एआई के कोर्सेज अडॉप्ट करने की कोशिश करें। हम जो कंप्यूटर की एजुकेशन भी दे रहे होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ के इन्वायरमेंट और एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक अगर हम देखें तो थोड़ा सा लोअर साइड के ऊपर हम नहीं पढ़ाते पर्टिकुलरली इस तरह की चीजों के बारे में। बट द अल्टीमेट स्टेज इज टू लर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू लर्न हाउ टू डेवलप दीज काइंड ऑफ सिस्टम्स। सो पहली फेज है कि हम उन टूल्स को सीखें, सेकंड फेज है कि हम उन कोर्सेज को सीखें जो एआई को सीखने में हेल्प आउट कर सकते हैं, और थर्ड फेज ये है कि हम ये सीखें कि एआई प्रोडक्ट्स बनाई कैसे जा सकती हैं और एआई के जरिए हम सोसाइटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारी डिस्कशन चूंकि टीचर्स के साथ है, सो हम जो फोकस कर रहे होंगे दैट विल बी लर्निंग विद एआई, और इसके अंदर भी हमारा वो टीचिंग फेसिंग टूल्स के ऊपर होगा, टीचर फेसिंग टूल्स के ऊपर मौजूद रहेगा। सो लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए हम एआई को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जो हम यूज कर सकते हैं। इनमें से कुछ टास्क ऐसे हैं जो क्लासरूम में जाने से पहले करने वाले टास्क हैं, कुछ टास्क ऐसे हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो क्लासरूम के दौरान हम यूज कर सकते हैं और कुछ क्लासरूम के बाद हम यूज कर सकते हैं। सो क्लासरूम से पहले जो काम हम एआई से ले सकते हैं, फर्स्ट थिंग दैट वी can do with AI tools and technologies is to brainstorm on lesson plans and activities. Obviously हम सब टीचर्स हैं, हमने लेक्चर्स डिलीवर करने हैं, हम प्लान करते हैं कि हमारे पास अगर कोई सब्जेक्ट मौजूद है, उसको हमने प्लान किया है 30 लेक्चर्स के अंदर हमें उसको डिलीवर करना है। हम इस बात को प्लान करते हैं कि हर लेक्चर के अंदर ओवर द एक्सपीरियंस हमें पता चल जाता है कि एक लेक्चर के अंदर कितनी चीजें पढ़ानी है, बीच में अगर कोई छुट्टी आ गई है तो उसको स्पीड को कम कैसे करना है, स्पीड को ज्यादा कैसे करना है। हम उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज प्लान करते हैं। बट व्हाट हमारे का सारा कोर्स जो है और कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो एआई एजेंट को प्रोवाइड कर दें और हम उसे कहें कि ये टॉपिक फॉर इंस्टेंस मैंने आज पढ़ाना है, इसके लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जो स्टूडेंट से हम परफॉर्म करवा सकते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो असाइनमेंट्स हो सकती हैं, वो डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। सो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो अक्सर टीचर्स फेस करते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम फेस कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कैसे डेवलप करवाया जाए इनटू आवर कोर्सेज। सो वन पॉसिबल थिंग इज कि उनके लिए स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड की कोशिश करते हैं तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। नाउ बीइंग ए टीचर मैं कितनी एक्टिविटीज क्रिएट कर सकता हूं, कितनी एक्टिविटीज को असेस कर सकता हूं। द बेस्ट थिंग इज जो कंटेंट मैंने पढ़ाना है वो कंटेंट जस्ट सिस्टम्स के हवाले करें। उनमें से एक टूल के ऊपर अभी हम बात कर भी रहे होंगे आगे चलकर, वो सिस्टम को दें और सिस्टम को कहें, एजेंट को कहें कि वो हमें प्लान करके दे कि इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए कौन सी एक्टिविटीज जो हैं वो स्टूडेंट से करवाई जा सकती हैं। हम जो मटेरियल हमने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है हम वो मटेरियल कस्टमाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के हवाले से। 2-4 साल के बाद हमारे पास एक बैच ऐसा आ रहा होता है कि जिसके अंदर नॉर्मली
अनफॉर्चुनेटली हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज नॉट क्वाइट अ गुड टर्म, बट नॉर्मली हम ये कहते हैं कि इस दफा तो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत नालायक किस्म के स्टूडेंट्स हमारे पास हैं, ये बैच जो है ये तो बिल्कुल पढ़ने के ऊपर आमादा नहीं होता। सो इसका मतलब है कि दैट इज अ डिफरेंट क्लास ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास आई है। सो अब मुश्किल ये नहीं है फ्रॉम माई परस्पेक्टिव कि हम ये कहें कि स्टूडेंट नई तरह के आए हैं। बेसिकली हम इस बात के अंदर परेशान होते हैं, इस बात के अंदर पजल होते हैं कि अब क्या कर हम अपनी बात को कैसे समझाएं, क्योंकि ओवर द इयर्स हमें बात को एक खास तरीके से करने की आदत होती है। सो वाई वी शुड टेक द पेन कि हम स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक खुद से अपनी सारी मेथोडोलॉजी को चेंज करें। स्टूडेंट का प्रेफरेंस लेवल है, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक हमने जो लेक्चर्स के अंदर एग्जाम्पल्स को चेंज करना है, प्लान को चेंज करना है, एक्टिविटीज को चेंज करना है, प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स टू द एजेंट्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स, और लेट एआई डिसाइड के उसने उन स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के मुताबिक, उन स्टूडेंट्स के लेवल के मुताबिक उन एक्टिविटीज को रीफॉर्म रीशेप कैसे करना है। वी कैन जनरेट कॉमन स्टूडेंट क्वेश्चंस जो हम क्लास के अंदर लेक्चर डिलीवर करने के बाद स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि इस लेक्चर के अंदर कौन सी बातें उनको समझ में आई हैं। हमने इस बात को असेस करना है कि टॉपिक कंप्लीटली उनकी समझ में आ गया है या नहीं आया। तो व्हाई शुड आई टेक द पेन कि मैं लेक्चर भी डिलीवर करूं और बाद से क्वेश्चन, इस लेक्चर के बाद कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं। प्रोवाइड द कंटेंट टू द एआई और एआई से पूछें कि इस लेक्चर के बाद, इस कंटेंट को पढ़ाने के बाद कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछे जाने चाहिए। हम गाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं, रूब्रिक्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करवा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे वर्कशीट्स होती हैं वो प्रिपेयर करवा सकते हैं, हम स्लाइड्स बनवा सकते हैं। पर्टिकुलरली दी स्लाइड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द मटेरियल इन दी स्लाइड्स हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग इंटेलिजेंट एजेंट्स। और अगर मैं आपको शायद और इस पॉइंट को डिस्कस ना करता तो ये जिस तरह से मटेरियल तैयार हुआ है इसको देखकर शायद ये असेस करना, इस बात का अंदाजा लगाना डिफिकल्ट होता कि ये स्लाइड्स हैं या ये मटेरियल कंटेंट जो है वो किसी ह्यूमन ने बनाया हुआ है या किसी सिस्टम ने बनाया हुआ है। सो रीडिंग हम इसके लिए सजेस्ट करवा सकते हैं, या हमने कंटेंट दे दिया है, हम एआई को कह सकते हैं कि उस टेक्स्ट को समराइज कर दे। क्विजेस जो हैं वो प्रिपेयर करवाए जा सकते हैं, क्वेश्चन या टॉपिक ऑफ डिस्कशंस बनवाए जा सकते हैं। बट इसके अंदर जो कॉपीराइट्स हैं अल्टीमेटली हमें और एआई एथिक्स हैं उनका रखना पड़ता है। जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं। लेट्स सपोज कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो मुझे समझाना है किसी क्लास को, तो हम एआई की हेल्प ले सकते हैं कि इसको किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के लिए, किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सपर्टीज के स्टूडेंट्स के लिए उस कॉन्सेप्ट को कैसे डिलीवर किया जा सकता है, उसके अंदर कौन सी एग्जाम्पल यूज की जा सकती हैं। उसके लिए इमेजेस यूज करने हैं, उसके लिए ग्राफिक्स यूज करनी है, ये सारे काम भी एआई को यूज करते हुए किए जा सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन, ये सारी बातें हमने कर ली कि क्लास से पहले एक्टिविटीज कौन सी हैं, क्लास के दौरान, और उसके बाद हम कौन से काम एआई से ले सकते हैं। सो नाउ इज द क्वेश्चन कि वो टूल्स कौन से हैं जिन टूल्स को हमें यूज करना चाहिए ये सारे के सारे काम करने के लिए। सो द फर्स्ट टूल वी हैव एंड दैट इज अ टीचिंग फेसिंग टूल इज चैट जीपीटी। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टूल और बहुत ज्यादा बज क्रिएट हुआ है मार्केट में चैट जीपीटी का। बट द रियल क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली चैट जीपीटी इज और हम चैट जीपीटी को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। सो चैट जीपीटी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल है और ओपन एआई ने इसको, ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस टूल को डेवलप किया इन 2022 और इसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज किया गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एक टर्म है जो हम यूज करते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि हमने मशीन को ट्रेन करना है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेजेस जो हम ह्यूमंस बोल रहे होते हैं लाइक उर्दू, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनकी बेस के ऊपर हम कंप्यूटर्स को, मशीन्स को ट्रेन कर सकते हैं। सो ओपन एआई ने ये टूल्स जो हैं वो डेवलप किया और इन टूल्स को डेवलप करने के बाद इसको जनरल पब्लिक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया। ऑल्दो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 अवेलेबल है। जो पेड वर्जन है दैट इज वर्जन 4.0, उसके अंदर कुछ एक्सटेंडेड फीचर्स भी मौजूद हैं
बट जो वर्जन 3.5 है विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सर्विसेज जो पेड वर्जन प्रोवाइड करता है, उनमें से मोस्ट ऑफ द सर्विसेज फ्री वर्जन के अंदर भी अवेलेबल होती हैं। सो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनको बेसिकली बहुत बड़े कॉर्पस के ऊपर ट्रेन किया जाता है, जिसके अंदर बुक्स, वेबसाइट्स, विकिपीडिया, रिसर्च पेपर्स, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, जो न्यूज़पेपर्स, इस किस्म की तमाम चीजें जो हैं वो और ये जो बुक्स एंड वेबसाइट्स और इन चीजों की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिलियंस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनकी बेस के ऊपर एक्चुअली एजेंट को प्रोग्राम या ट्रेन किया जा रहा होता है। सो बेसिकली ये एक चैट टूल है, जस्ट लाइक जिस तरह से हम आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर या किसी भी मैसेंजर के थ्रू please inform if you can hear me. Yes, sir. You can continue. Thank you. ओके, सो हम बात कर रहे थे चैट जीपीटी की, एंड दिस इज ए टूल जो हम यूज कर सकते हैं, और ओपन एआई ने ये टूल जो है वो डेवलप किया है। सो इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, जिन बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है इन एजेंट्स को ट्रेन करने के लिए। और इसके अंदर जस्ट आप जिस तरह से मैसेंजर के ऊपर किसी भी ह्यूमन के साथ चैट कर रहे होते हैं, उसी तरीके से आप इस एजेंट के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं। सो अगर आपने इस टूल को
यूज करना है, यू जस्ट हैव टू गो chat.openai.com। इसके ऊपर इजी रजिस्ट्रेशन होती है, आपका जीमेल का अकाउंट है, आप उसके जरिए भी लॉग इन हो सकते हैं, अदरवाइज आप इसके ऊपर खुद से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अकाउंट क्रिएट करके यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। सो इसके अंदर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई है, दैट आई आस्क्ड द क्वेश्चन to explain the concept of Newton third law of motion for a 4-year-old kid। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने पहले उसको एक इंस्ट्रक्शन दी है टू एक्सप्लेन समथिंग, उसके बाद मैंने बताया है कि क्या चीज एक्सप्लेन करनी है, और उसके बाद मैंने उसे एक रोल दिया है कि मुझे ये बात जो है वो एक 4-year ओल्ड किड के पर्सपेक्टिव में ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझाए। सो चैट जीपीटी को मैंने ये क्वेश्चन दिया, तो चैट जीपीटी ने उस क्वेश्चन का मुझे आंसर प्रोवाइड कर दिया। सो सपोज आई एम ए पर्सन जो इंग्लिश के अंदर बात को नहीं समझ सकता, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन और उसका आंसर जो है वो इंग्लिश में ले रहा हूँ। सो मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी कि ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू। अब मैंने वो सारा टेक्स्ट नहीं लिखा, बस लिखे उसी टेक्स्ट के नीचे एक मैसेज कर दिया कि इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट कर दो। सो उसने उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके वही टेक्स्ट जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दिया। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट उर्दू के अंदर ट्रांसलेट होकर आया है, इसके अंदर बड़ी मजेदार किस्म की उर्दू जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है, और उसके अंदर उसने ट्रांसलेट इसको किया है। ठीक है, जरा सोचो कि तुम झूले पर अपने दोस्त के साथ खेल रहे हो, तो जब तुम अपने दोस्त को झूले पर धक्का देते हो तो क्या होता है, तुम्हारा दोस्त आगे जाता है। नाउ यू कैन सी कि ये जस्ट ये स्टाइल नहीं है कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जस्ट ये बताया हुआ है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या, बल्कि उसको एक्सप्लेन भी लिखा हुआ भी इस तरीके से है, जैसे अगर मैं इसको ये बोलना शुरू कर दूं तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूं और लेक्चर के अंदर कोई बात किसी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो वर्डिंग, सिलेक्शन ऑफ वर्डिंग इसके अंदर यूज हुई है वो बड़ा सिंपल और बड़ा कैजुअल वे के अंदर, नॉर्मल जिस वे के अंदर हम लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं उसी वे के अंदर यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है। बट फॉर इंस्टेंस मुझे लगा कि ये जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट स्टिल जो है वो इजी नहीं है, मुझे इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन चाहिए। सो नेक्स्ट मैंने जो इसको कमेंट किया, दैट वाज और आसान तरीके से समझाओ। अब आप ये देख रहे हैं, अब ये प्रीवियस मैंने इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में लिखी हुई थी, अब मैं उसे डायरेक्टली उर्दू के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सो इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि आप उर्दू इंग्लिश के अंदर ही इससे बात करेंगे तो इसे समझ में आएगी, आप अपनी लैंग्वेज के अंदर जो टेक्स्ट इसको लिखेंगे वो भी इसकी समझ में आ जाएगा। सो मैंने इसे कहा और आसान तरीके से समझाओ, उसने उन्हीं एग्जाम्पल्स को डिफरेंट एग्जाम्पल में कन्वर्ट किया और उसकी फर्दर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो लॉ और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर अब उसने साथ लिख दिया है कि जब तुमने गेंद को दीवार की तरफ फेंका तो ये अमल है, तो दीवार ने गेंद को वापस तुम्हारी तरफ धकेला, ये रद्द अमल है। सो उसकी ज्यादा बेटर और ज्यादा इजी जस्टिफिकेशन यहां पर दे दी गई है। उसके बाद मैंने उसे फर्दर कहा कि और आसान, अब कोई बहुत डिटेल इंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ वर्ड लिखा हुआ है और आसान। उसने कहा और भी आसान तरीके से समझाता हूं। सो उसने अब फिर एक बिल्ली की एग्जाम्पल ले ली, और बिल्ली की एग्जाम्पल लेने के बाद उसने पानी की एग्जाम्पल ली, उन मिसालों के जरिए उसने ये बात समझाने की कोशिश की। सो जस्ट थिंक अबाउट के आपके घर के अंदर कोई बिल्कुल ही इतना छोटा बच्चा है जो 4 साल का है और आपने उसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाना है, तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल कि बच्चा पानी के अंदर हाथ मारे तो पानी के अंदर हाथ मारे, पानी उसको वापस धकेल रहा है, या बिल्ली को वो करे तो बिल्ली उसको वापस पुश कर रही है। तो ये जो फोर्स लग रही है और रिवर्स फोर्स लग रही है, उसके जरिए कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की गई है। सो आप जिस भी क्लास को पढ़ा रहे हैं और जितना भी मुश्किल तरीन टॉपिक आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी, और उसको आप एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, डिफरेंट तरीके से जो एग्जाम्पल्स आप क्रिएट करवाना चाहें, कंटेंट क्रिएट करवाना चाहें, ये सारे का सारा काम आप चैट जीपीटी की मदद से कर सकते हैं और बहुत इजीली किया जा सकता है। सो चैट जीपीटी को जब हमने यूज करना है तो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि ये जो मैंने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि ये मैंने लिखा है और आसान, या इसे कहा है और आसान तरीके से समझाओ, या इसे कहा है ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, दीज आर प्रॉम्प्ट्स। जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं चैट जीपीटी को, या हम कोई भी मैसेज चैट जीपीटी को सेंड करते हैं, तो इसको प्रॉम्प्ट कहा जाता है। सो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर करने पड़ते हैं कि हम चैट जीपीटी से कम्युनिकेट कैसे करें। नाउ चैट जीपीटी इज फ्रीली अवेलेबल, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, इसको अपने फायदे के लिए हम बेस्ट
पॉसिबल वे में यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। सो इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है और इसके अंदर एक रूल जो यूज होता है दैट इज CPR, जो आर्टिफिशियल तरीका है सांस निजाम तनफुस को बहाल करने का, उसको CPR कहा जाता है। वो CPR रूल जो है वो यूज होता है। CPR के अंदर द फर्स्ट थिंग इज क्लैरिटी। आप जब भी कोई प्रॉम्प्ट दें, कोई भी इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को दें, तो दैट इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियरली, यू शुड हैव टू डिफाइन वेरी क्लियरली व्हाट यू वांट फ्रॉम चैट जीपीटी टू डू। सो आपको किस किस्म की आउटपुट चाहिए, आपको कोई समरी चाहिए, कोई एनालिसिस चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, कोई ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है, ये तमाम की तमाम चीजें आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं। बट जो भी प्रॉम्प्ट आप दे रहे होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे आप, वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होंगे तो चैट जीपीटी कैन गेट कंफ्यूज्ड। दूसरी चीज, कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए कि जो चीज आप चैट जीपीटी को करने के लिए कह रहे हैं उसके लिए क्लियर कॉन्टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करें कि काम उसने करना कैसे है। तीसरी चीज जिसकी जरूरत होती है दैट इज प्रिसीशन। प्रिसीशन का मतलब यह है कि स्पेसिफाई करें कि हम क्या चीज चाह रहे हैं। हमें कोई लिस्ट चाहिए, कोई पैराग्राफ चाहिए, हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, उस डॉक्यूमेंट के अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो कितने होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर यही चैट जीपीटी को मैं इस वक्त ओपन करूं और उसे ये कहूं कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये सिर्फ 10 वर्ड्स के अंदर समझा दे, तो वो सिर्फ 10 वर्ड्स को यूज करेगा इस बात को समझाने के लिए। और अगर मैं उसे कहूंगा कि 100 वर्ड्स में समझाए, तो अब वही बात 100 वर्ड्स में समझाएगा। और अगर मैं उसे कहूंगा कि 1000 वर्ड्स में समझाए, तो चैट जीपीटी उसके अंदर इतनी एक्सप्लेनेशन ऐड करेगा कि 1000 वर्ड्स तक पहुंच जाएगा। सो प्रिसीशन, आपके इंस्ट्रक्शन के अंदर प्रिसीशन होनी चाहिए, अदरवाइज वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको कितनी डिटेल के अंदर बात करने की जरूरत है। रहे हो तो लास्ट थिंग जो हमें यहां पर बतानी पड़ती है दैट इज अ रोल टू प्ले। कि चैट जीपीटी ने जो आंसर देना है, जो बात चैट जीपीटी ने करनी है, वो बात करते हुए रोल क्या प्ले करना है। एक टीचर का रोल प्ले करना है, एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर यही क्वेश्चन चैट जीपीटी से मैं करूं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एक मैथमेटिशियन के अंदाज में समझाए, किसी मैथमेटिशियन को जरूरत है कि उसने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझाना है, तो वो कैसे जाएगा। आप चैट जीपीटी यहाँ पर वो एग्जांपल मैथमेटिशियंस यूज करते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसी लिंग्विस्टिक के टीचर या कॉमन सेंस उर्दू के टीचर के अंदाज में समझाओ, तो वो अब वो अदबी मिसालें और वो अल्फाज यूज करेगा जो एक कोई लिंग्विस्टिक का टीचर जो है वो यूज कर सकते हैं। जो रोल प्ले है वो उसके अंदर देना चाहिए। ये सारी चीजें, क्लैरिटी, कॉन्टेक्स्ट, प्रिसीशन एंड रोल प्ले, ये सारी चीजें मिलकर जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं चैट जीपीटी की, और उसकी बेस के ऊपर वो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। अब चैट जीपीटी क्या क्या कर सकता है, ये आपके लिए, आप कोई भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए कंप्लीट कंटेंट जनरेट आपको दे सकता है। आपके पास कंटेंट मौजूद है, ये उसकी बेस के ऊपर आपको क्वेश्चन जनरेट करके दे सकता है। आपके पास क्वेश्चंस मौजूद हैं, ये उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको प्रोवाइड कर सकता है। आपके पास सिंपल क्वेश्चन मौजूद हैं, आप ये कहते हैं कि इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दो, वो शॉर्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देगा। आप ये कहें कि इसको एमसीक्यूज बना दे, तो वो एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बना देगा, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस बना देगा। आप टेक्स्ट को समराइज करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, चैट जीपीटी टेक्स्ट को समराइज कर सकता है। आप उसकी एक्सप्लेनेशन एंड इलेबोरेशन के लिए कहेंगे तो वो उसकी एक्सप्लेनेशन एंड इलेबोरेशन कर देगा। आप ये चाहते हैं कि आपने अपने प्रिंसिपल को या डायरेक्टर कॉलेजेस को या गवर्नर को या किसी को भी कोई लेटर लिखना है, तो ये लेटर को टाइप कर दे। आप जस्ट इसको ये बताएं कि लेटर किस चीज के बारे में टाइप करना है, ये लेटर आपको टाइप करके दे देगा। और अगर आप कोई लेटर इसको प्रोवाइड करें और आप चैट जीपीटी को कहें कि इस लेटर को करेक्ट कर दे, इसके अंदर स्टेट्स हैं, वो चैट जीपीटी ये सारे काम भी कर सकता है। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आप चैट जीपीटी को कहें कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए मुझे पॉइंट्स बताओ, तो वो पॉइंट्स चैट जीपीटी आपको बता सकता है कि प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन के अंदर किन किन टॉपिक्स को और किन किन चीजों को कवर करना चाहिए। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स जो चैट जीपीटी हमारे लिए कर सकता है। और अगर हम इसका पेड वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम यही सारे काम इमेजेस की मदद से, वीडियोज एंड ग्राफिक्स की मदद से भी ये काम कर सकते हैं। And the tool is Magic School, and this is again
वेरी वंडरफुल टूल फॉर द टीचर्स। और अलबत्ता इस टूल का थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि इसका जो फ्री वर्जन है वो बहुत लिमिटेड है और थोड़े से टाइम के लिए मिलता है। अलबत्ता इसके पेड वर्जन के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज जो हैं वो मौजूद हैं और इसकी मदद से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ये मैजिक टूल जो सर्विसेज करता है, तो डजन्स ऑफ सर्विसेज हैं जो ये मैजिक स्कूल का टूल प्रोवाइड कर रहा होता है। इसकी मदद से जो ज्यादा रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट काम हम कर सकते हैं, दैट इज वर्कशीट जनरेटर। हम फॉर इंस्टेंस जो जूनियर स्कूल्स होते हैं या हाई स्कूल्स होते हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स को टास्क हमने ये जनरेट करके हमें दे सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, आप कंटेंट की बेस के ऊपर मल्टीपल चॉइस असेसमेंट्स ये क्रिएट कर देगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। आपके पास कंटेंट नहीं है, आप जस्ट टॉपिक का नेम बता देंगे तो उस नेम की बेस के ऊपर भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको जनरेट करके दे सकता है। इसके अलावा टेक्स्ट रीराइटर का टूल भी इसके अंदर मौजूद है। यूट्यूब वीडियो क्वेश्चंस, आपने कोई यूट्यूब वीडियो जो है वो देखी है जो उसी टॉपिक के ऊपर है, जो टॉपिक आप अपनी क्लास के अंदर पढ़ाना चाह रहे हैं, आपने कंटेंट नहीं दिया, आपने जस्ट यूट्यूब की वीडियो का लिंक दे दिया है कि बेस्ड अपॉन दिस वीडियो कंटेंट क्वेश्चन जनरेट करके दे दें। ये काम भी कर सकता है। उसके अलावा एकेडमिक कंटेंट आपने जनरेट करवाना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो कंटेंट ये आपको जनरेट कर सकता है। देन टेक्स्ट डिपेंडेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इस तरह से क्वेश्चन हैं। टेक्स्ट समराइजर जो है वो ये वर्क फीडबैक जो हम बात कर स्टूडेंट कर सकते हैं और एजेंट जो है वो उन क्वेश्चन को आपको आंसर करके दे सकता है। उन क्वेश्चन को इवैल्यूएट एंड असेस करके आपको दे सकता है कि क्वेश्चन ठीक है या नहीं। आपको जस्ट क्राइटेरिया बनाना होगा कि ऊपर क्वेश्चन। देन टेक्स्ट लेवलर है, पर्टिकुलर ग्रेड के लिए लेवल करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस कोई टॉपिक है जो मैट्रिक के अंदर पढ़ाया जाता है लेकिन आप अपने स्टूडेंट्स को क्लास 4, 5, 6 के स्टूडेंट को चाहते हैं कि वो हो जाए, या आपके पास मौजूद है जो आपको मिला है किसी बहुत छोटे बच्चों की किताब के अंदर मिला है और आपने वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो टॉपिक पढ़ाने के लिए आप टेक्स्ट को लेवल कर सकते हैं। उसके अलावा यूनिट प्लान जनरेटर आप इसके अंदर मौजूद है। किसी पर्टिकुलर लेवल तक, डेप्थ तक जो है वो क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। डेप्थ ऑफ नॉलेज क्वेश्चंस जो हैं कि कितनी डेप्थ ऑफ नॉलेज को असेस करते हुए क्वेश्चंस बनाए जाएं। समटाइम्स जब हम बात कर रहे होते हैं क्लासरूम्स के अंदर तो हमें कुछ जोक्स को पर्टिकुलरली यूज करना पड़ता है। एक पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के अंदर मैं कुछ जोक्स या जो पिक्चर्स हैं इस तरह की वो एड अप करता हूँ स्टूडेंट्स को थोड़ा चल के लिए, उनका मूड चेंज करने के लिए। सो वो सारे काम यहाँ से करवाए जा सकते हैं। जरूरत नहीं एजेंट के वो रेलिवेंट को जोक क्रिएट करके दे दें। उसके अलावा वर्ड स्टोरी, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड यूट्यूब की वीडियो समराइजेशन इससे हो सकते हैं। सो कैन सी कितने ज्यादा नंबर ऑफ टूल्स हैं जो यहाँ पे जा सकता है इस एजेंट के थ्रू। वन इज सोक्रेटिक। सोक्रेटिक जो है ये भी एक बहुत बेहतरीन जो पर्टिकुलरली कॉलेज लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको यूज किया जा सकता है। एंड दैट इज कि आपको भी सब्जेक्ट इसको बताएंगे, ये लिटरेचर, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसके फॉर्मूलाज, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको मिसालों के साथ, एग्जांपल्स के साथ उसका कंटेंट क्रिएट करके दे दे। पढ़ा रहे हैं या आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं या आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं,
जस्ट प्रोवाइड द टॉपिक और ये एग्जांपल्स के साथ आपको कंटेंट भी क्रिएट कर देगा, एग्जांपल्स क्रिएट कर देगा, और जिनको आप वो रेडीमेड कंटेंट होता है जिसको आप कहीं पर भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो दैट इज अक्सर लेक्चर्स के अंदर जहां पर बेसिक कंटेंट पढ़ाने होते हैं, बहुत बेसिक लेवल की चीजें पढ़ानी होती हैं, तो वहां पर आई हैवली यूज दिस टूल। और इसकी भी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप इस टूल को सकते हैं। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम इतने सारे टूल्स की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है दैट डू वी नीड टू लर्न ऑल दीज टूल्स? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इज टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड इवन मोर प्रैक्टिस। सो आपको इन टूल्स की क्लासें लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन टूल्स के नाम आपको पता चल गए हैं, अब आप भी ये सोचे कि इसके लिए आपको कोई ट्यूशन लेनी पड़ेगी, आपको यूट्यूब से जाकर इसको सीखना पड़ेगा। नो, द ओनली रूल ऑफ थंब इज प्रैक्टिसिंग इट। आप इसको प्रैक्टिस करने लगेंगे और आप खुद एजेंट से पूछेंगे कि बताएं कि आपको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है। लाइक चैट जीपीटी, आपने हमने प्रॉम्प्ट्स की बात की थी कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करनी है। सो आपको नहीं पता कि कौन सा प्रॉम्प्ट यूज होना चाहिए, आप चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट कर सकते हैं कि मुझे ये काम करना है, इसके लिए मुझे बताओ कि प्रॉम्प्ट कौन सा होना चाहिए। उसके लिए आप ये यूज करें। सो आप प्रैक्टिस करें, ये टूल आप खुद सीख सकते हैं। कौन सा है द मोस्ट बेसिक इंपॉर्टेंट चैट जीपीटी। बहुत सिंपल है, सारे काम करवाने के लिए एक बेसिक टेक्स्ट बॉक्स है, जिस तरह से गूगल के अंदर आप सर्च इंजन करते हुए टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करते हैं, इस तरह से यहां पर भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट यूजिंग इट। उसके बाद आप किसी दूसरे टूल के ऊपर शिफ्ट होना चाहते हैं, आप चैट जीपीटी को क्वेश्चन कर सकते हैं कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें। अदरवाइज आप उसको यूज करना स्टार्ट कर दें एंड ग्रेजुअली आपकी ग्रिप जो है वो उन टूल्स के ऊपर बेहतर होने लग जाएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर कॉशन है कि अगर आप रिसर्च के अंदर, एकेडमिक रिसर्च के अंदर इसको यूज करना चाहते हैं तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि समटाइम्स जो रेफरेंसिंग है या इस किस्म की कुछ चीजें हैं वो ऐसे जिनको डायरेक्टली यूज किया जा सकता हो, या कुछ जर्नल्स होते हैं वो एआई कंटेंट को अलाउ नहीं करते। सो उसके बारे में पॉलिसीज चेंज होती जा रही हैं। हम एआई जनरेटेड कंटेंट जो है उसको रिसर्च पेपर्स के अंदर या आर्टिकल्स वगैरह के अंदर यूज नहीं कर सकते। सो बेसिक हेल्प उससे ली जा सकती है, बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड एनालिसिस करवाए जा सकते हैं, बट ऑब्वियसली जब राइट अप करना हो तो उसको हमें खुद अपने तरीके से, अपने स्टाइल में करना पड़ता है। सो देन वी हैव सम स्टूडेंट फेसिंग टूल्स, जिसमें असिस्टमेंट्स है, एरिया एनालिसिस है, उसके अलावा कॉग्नी है। ये डिफरेंट टूल्स हैं जो असाइनमेंट करने में स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करते हैं। ऑब्वियसली वो जो टूल्स हमने डिस्कस किए थे उनमें चैट जीपीटी स्टूडेंट्स भी यूज कर सकते हैं, सोक्रेट्स जो है वो भी स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो डायरेक्टली स्टूडेंट्स के एरिया से रेलिवेंट हैं, स्टूडेंट्स उनको नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ये इन टूल्स का पर्पस ये है कि आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो कि वो कौन कौन से टूल्स हैं यूज कर सकते हैं अपने काम करने के लिए। उसके अलावा अगर हमने एआई प्रोडक्ट्स बिल्ड करनी है या एआई को लर्न करना है, उसके लिए कुछ टूल्स मौजूद हैं, लाइक एलिमेंट्स ऑफ एआई है, एआई फॉर K-12 है, या टीम्स इन एआई। ये डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं, काम करवाते हैं कि एक्चुअली एआई प्रोडक्ट्स बनाई कैसे जा सकती हैं, और उसके लिए जो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। So in my classrooms, I use numerous tools to prepare my lectures, और उनके अंदर फोटो मैथ है। दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट टूल। आप कोई भी पिक्चर जो है वो इसके अंदर एंटर करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रिसर्च पेपर्स वगैरह से यहाँ पर हमें अपने लेक्चर्स के अंदर कुछ चीज़ें यूज करने की जरूरत पड़ती हैं, पर्टिकुलरली जब हम एमफिल या पीएचडी की पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पर जरूरत पड़ती है बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की। सो अब वो सारे एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है कि आप वर्ड Excuse में me, या sir. पावर पॉइंट के अंदर हम जाएंगे और वहां पर जी जी Sorry for interruption. ये स्लाइड्स सर काइंडली चेक कीजिए, शेयर हो रही, स्लाइड शेयरिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर। ओके, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी, अब कंफर्म कीजिएगा।
Can you see the slides? Yes, sir, visible. Thank you so much, sir. Okay, thank you. So photomath MPhil या PhD की क्लासेस में particularly प्रॉब्लम होता है कि वो इक्वेशंस अगर टाइप करनी पड़े तो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. सो वो पिक्चर्स हम जस्ट प्रोवाइड करते हैं और ये उनकी इक्वेशंस टाइप करके दे देता है. क्विलबॉट पैराफ्रेजिंग के लिए बहुत हैवीली यूज होता है. ग्रामरली को मैं ऑफन यूज करता हूँ. जो कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना होता है तो उसकी ग्रामर चेक करने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट पर्सन. सो अक्सर हमारी जब हम अंग्रेजी लिख रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं उसके अंदर कुछ ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं. सो वो रिजॉल्व कर सकता है. स्प्रेटिक है, उसके अलावा कोडियम है जो रेलिवेंट कोड जनरेट करके दे देता है. जब लेक्चर रूम्स में जाना है उसके लिए कोई पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोड अगर चाहिए तो वो कोड सारा कुछ लिखने के बजाय वो कोडियम से हमें हेल्प मिल जाती है. उसके अलावा टीचेबल मशीन्स हैं, गूगल फॉर्म्स वगैरह हैं जो ऑनलाइन अगर टेस्ट या क्विजेस वगैरह बनाने हैं तो वो जनरेट कर देते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द टूल्स जो नॉर्मली मैं यूज करता हूँ. And then there are some ethics of using AI in learning and work environment. So good thing about AI is it can save us time and it can allow us to focus on what's really important in class, and it can give our students the required skills that are needed at school and college level and at graduation level. The bad thing is it can produce some bias क्योंकि जो डेटा होता है वो एक particular environment के अंदर ट्रेन किया. जो होता है उसके अंदर तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट हो सकता है, इस्लामिक स्टडीज का सब्जेक्ट हो सकता है. ये इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर कुछ वो क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं. एंड द अगले थिंग इज दैट AI समटाइम्स कैन hallucinate को भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है. सो द लास्ट पॉइंट इज that our intelligence is what makes us human. AI is just an extension to that quality. So it's not something that we should fear of. AI is not kind of thing कि जिसको हम अपना enemy consider कर रहे हो. So AI can be really beneficial and helpful अगर हम इसको उन कामों के लिए यूज करें जो प्रोडक्टिव काम है और उसके लिए हम अपने जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. So these are some of the resources जिनको मैंने यूज किया है इन स्लाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए, लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए. You can go through these links as well. And house is now open for any and every question that you. So अगर मौजूद हैं एंड यू कैन प्रोवाइड कंट्रोल टू द ऑडियंस. अगर कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो वी कैन डील द क्वेश्चंस. Yes. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum sir. Sir, वालेकुम GPT. सलाम जी, बताइए. What stands for GPT? GPT का क्या मतलब सर? इसका इसका जनरल पर्पस टूल. Thank you sir. Thank you. अस्सलामुअलैकुम सर. सर आई एम AI वालेकुम स्टूडेंट, सलाम. तो मेरी रिसर्च भी AI पे है. उसमें डीप लर्निंग और मैं पढ़ा भी रही हूँ BS लेवल पे AI को, और मैं बड़ा इंटरेस्ट भी है मेरा इसमें. जो अक्सर मैंने देखा है क्लासरूम में पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को, उनको हम पढ़ाते तो हैं. ये जो आपने 3 मोड बताए हम उनको पहले से और किसी हद तक दूसरे मोड में भी ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन है या एक्चुअली हम उनको डेवलप इम्प्लीमेंट कराएं, तो उसके लिए ना तो हमारे पास कोई इस तरह की हमें ट्रेनिंग दी जाती है, ना हमारे पास कोई इस तरह की कोई इन्वायरमेंट आता है, और स्टूडेंट्स के अंदर 1500 क्वेश्चन छोड़ के हम भी बाहर आ जाते हैं और हम भी उनको ढूंढते रहते हैं और वो भी उनको ढूंढते हैं. तो कोई ऐसी आप सजेशंस दें HED को कि ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो खासतौर पे जहाँ पे BS IT हो रहा है, BS CS हो रहा है, उनकी जो फैकल्टी है वहाँ पे कोई इस तरह की या तो कोई सेमिनार कराए जाएं या कोई इसी तरह कोर्स के अंदर कोई इस तरह जो न्यू टूल्स आ रहे हैं
उनको कुछ कराया जाए। तो ये काइंडली अगर आप इसको रिकमेंड करें या इस तरह का कुछ बताएं, नंबर 1 सर। और नंबर 2 मैंने आपसे सर ये पूछना था कि ये कौन सा ऐसा बेस्ट इसमें टूल है जहां से हम लेक्चर्स पीपीटी के फॉर्म में या पीडीएफ की फॉर्म में जनरेट करा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, एक चीज जो मैं पहले शायद क्वेश्चन को, जो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ था, एक दोस्त ने पूछा था, मैं उसको सही समझ नहीं सका था। वो शायद आप चैट जीपीटी के पर्सपेक्टिव में जीपीटी पूछे थे। तो चैट जीपीटी के अंदर जो जीपीटी है दैट इज जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स। जो प्री ट्रेन मॉडल्स होते हैं उसके लिए वो जीपीटी की टर्म जो है वो चैट जीपीटी के अंदर यूज की जा रही है। अदरवाइज वो नॉर्मली जब हम एआई प्रोडक्ट्स के अंदर उसको यूज करते हैं तो वो जनरल पर्पस टूल्स की हम बात कर रहे होते हैं। सो चैट जीपीटी के अंदर जो है वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर्स हैं। सेकंड, जो मैम अभी आपने क्वेश्चन किया है, थैंक यू वेरी मच, आप भी मेरे एरिया से रेलिवेंट हैं। सो दैट इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ थिंग फॉर मी कि कुछ एरिया रेलिवेंट पर्संस भी यहाँ पर मौजूद थे। एंड सो जो क्वेश्चंस आपने किए हैं, आई थिंक दैट इज नॉट माय टू सजेस्ट एनीथिंग। ऑब्वियसली ये सारी चीजें वो भी इन्वॉल्व हैं। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, सजेस्ट कर सकता हूँ कि इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं पर्टिकुलरली डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एंड कॉलेजेस के अंदर पर्टिकुलरली होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए भी, जहाँ पर इन टूल्स को सिखाया जा सकता हो, स्टूडेंट्स को बताया जा सकता हो कि ये टूल्स कैसे यूज किए जा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट रेजिंग द क्वेश्चंस, जब तक हमें खुद आंसर्स नहीं पता होंगे उस वक्त तक हम ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को गाइड एंड ट्रेन नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, समटाइम्स जनरेटिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड काइंड ऑफ थिंग कि अगर हम स्टूडेंट्स को ट्रेन इस तरह से कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें। सो वर्कआउट किया जा सकता है। एचईसी अगर इसके लिए, एचईडी जो है वो इसके लिए कोई प्लान चॉक आउट करे तो ऑब्वियसली आई कैन प्रोवाइड माय सर्विसेज जितनी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। सो हम इसके ऊपर कोई कोर्स प्लान जो है वो चॉक आउट किया जा सकता है इसके लिए। थर्ड थिंग इज, जो आपने क्वेश्चन पूछा है स्लाइड्स वगैरह जनरेट करने के लिए, देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल स्लाइड्स एआई एक टूल है, उसको यूज कर सकते हैं जो आपके लिए जो है वो कंप्लीट स्लाइड्स बना देता है। इवन जीपीटी को आप कहें तो जीपीटी पूरा स्लाइड्स का जो कंटेंट है और स्क्रिप्ट है वो जनरेट कर देता है, और उसके बाद उस स्क्रिप्ट को आप डिफरेंट टूल्स हैं उनके अंदर ले जाकर वो पीपीटी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर भी करवा सकते हैं। सो बेसिकली किसी एक टूल से सारा काम करवाने के बजाय हमें मिक्सचर ऑफ टूल्स को यूज करना पड़ता है। कुछ काम एक टूल से करवाएं, फिर उसको रिप्रोड्यूस दूसरे में करें, और वो रिप्रोडक्शन समटाइम्स हमें मैनुअली करनी पड़ रही होती है। Hope that answers your questions. Any other questions, please? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, मैं वालेकुम सलाम। सादिया हुसैन हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर जी। था, और इसके बाद हमें लग रहा है कि हम तो बिल्कुल ही कंप्यूटर इलिटरेट हैं। मेरी आपसे ये क्वेश्चन तो नहीं है, हम आपसे ऐसी कोई रिकमेंडेशन या हेल्प चाह रहे हैं कि हमें ये बताएं कि असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग लर्निंग का, और हम बहुत दफा कॉलेज में बहुत बड़ी बड़ी क्लास, लैंग्वेज टीचर है तो बड़ी क्लास पढ़ाते हैं, तो असेसमेंट के डर से हम बच्चों का टेस्ट ही नहीं लेते। तो और इसी तरह फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड जो है वो सारा सब्जेक्टिव पेपर लेता है। तो कोई ऐसा तरीका हमें बताएं कि एआई के जरिए नहीं हम रिस्पॉन्स शीट्स बच्चों की मार्किंग कर सकते, उससे बहुत जल्दी रैपिड असेसमेंट, जितनी ज्यादा असेसमेंट होगी बच्चे की लर्निंग उतनी ही स्पीड अप हो जाएगी। तो फेडरल बोर्ड जो है वो एआई पे चला गया है, वहां पर बच्चों की रिस्पॉन्स शीट्स जो है मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मार्क होती हैं, लेकिन पंजाब बोर्ड में जो हम पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है। हम एक पूरा 100 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर मार्क करते हैं और महीनों लगते हैं उस मार्किंग में, जिससे रिजल्ट लेट हो जाता है, यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स का स्पैन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सर इस सिलसिले में आपकी हेल्प चाहिए हमें। आप एचईडी को रिकमेंडेशंस देंगे, आप कैसे लाइजॉन हो, यानी आप जैसे एक्सपर्ट्स, और हमारे डिपार्टमेंट में एक असेसमेंट जो है वो हमें एआई की हेल्प से हम कर सकें, ऐसे टूल्स हो हमारे पास। पहले तो वो टेस्ट वैसे डिजाइन करना जी मैम, पड़ेगा। जी मैं अर्ज करता हूँ। यहाँ पर उसको प्रमोट कर रहे हैं, बताओ उसके अंदर एक थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि अभी तक जो टूल्स यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट
और एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली जब हम स्कूल्स एंड कॉलेज लेवल के ऊपर बात करते हैं तो अक्सर औकात वो शीट्स के ऊपर और इस तरह से वो लिया जा रहा होता है, उसके अंदर एक्यूरेसी रेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर किया जाए तो डेफिनेटली इसको यूज़ किया जा सकता है। HED अगर इस सिलसिले में काम करना चाहती है तो माई सर्विस विल ऑलवेज बी अवेलेबल। हम इसके लिए एक कोई ज्वाइंट काम कर सकते हैं कि जिसके अंदर यहाँ पर भी पंजाब HED के लिए और बोर्ड के लिए जो है वो इस तरह के काम किए जा सकते हैं। Excuse me, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं डॉक्टर साबरा सुल्ताना बात कर रही हूँ मुल्तान से। आई एम वेरी हैप्पी कि आपका जो लेक्चर है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और मुख्तलिफ चीज़ें हम थोड़ी बहुत तो यूज़ कर रहे होते हैं, बट आपकी गाइडेंस से हमें काफ़ी मतलब हेल्प मिली है कि हम इसको नेक्स्ट कैसे आगे ले जा सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि करंटली हमारे पास कोई सच कोई गाइडेंस ऐसे नहीं होती कि हम उससे हेल्प लें। हम हिट एंड ट्रायल से तो आगे चल सकते हैं, लेकिन गाइडेंस हमें मतलब कि कहाँ से लेनी चाहिए। आई रिक्वेस्ट कि हम आपके साथ आप हमें कोई अपना लिंक दें या कुछ हमें रेफरेंस दें कि हम उस पे आपसे जो लोग सीखना चाहें हम उसमें एक ग्रुप में शेयर हो जाएं और आप हमें इसको जो भी आप बेसिक से हमें सिखाना चाहें हमें आगे थोड़ा सा ले आए। मतलब ये हमारी पर्सनल वो होगी। हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट तो मे बी हम किसी ना किसी तरह से पूरी कर रहे हैं, तो आप हमें थोड़ा सा बेसिकली ट्रेन कर दें। अभी तो आपका ज़ाहिर है एक फिक्स लेक्चर है, आप उसको एक लिमिटेड तरीके से करेंगे, बट फ्रॉम द स्टार्ट यू हैव टू टेक अस टू द मैक्सिमम। आई रिक्वेस्ट कि अगर आप हमें कोई अलग से रेफरेंस दे दें, आप अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज दें, आपका कोई यूट्यूब चैनल हो या आप अपने जहाँ भी डिलीवर कर रहे हो, उससे हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी कि हम इसको सीखें और इसको अपने नेक्स्ट फ्यूचर के लिए इसको प्लान करें। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहबा। एक तो ये कि मैंने यहाँ स्लाइड पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो मेंशन की हुई हैं, यू कैन गेट इन टच विद दीज डिटेल्स। ये स्लाइड्स जो हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, उसके अंदर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं वो मौजूद होंगी। सेकेंडली, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। अगर आप में से कोई भी मोअज़्ज़ज़ फेलो जो है वो किसी भी सिलसिले में AI से रिलेटेड कोई गाइडेंस कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी तो आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल। आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहें, कोई गूगल क्लासरूम बनाना चाहें, इस तरह का कोई भी और मैकेनिज्म आप यूज करना चाहें तो आई एम ओके विद दैट। सो आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। Hello. जी शुएब साहब। Shoaib Kazmi from Rahimir Khan, sir. जी Sir, very सर। fruitful lecture. Very fruitful lecture, sir. Please explain what is CPR, sir. ये CPR जो है वो टर्म मैंने ली है, वो जो अक्सर आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, वो लोग जो समंदर में डूब रहे होते हैं उनको मसनूई तरीके से सांस दिया जा रहा होता है। सो ये टर्म यूज की जाती है CPR की, मैंने वहीं से एक्वाइन की है। ये बेसिकली Okay, thank you, sir. जी जी Thank you. सर जी सर, आपसे अस्सलाम एक सजेस्ट वालेकुम। करने मैं मैं अडॉप्ट भी की आपसे है एक कि आपके क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। आई एम मिसेस अनीला यास्मीन। जी जी मैं ये प्लीज। आपसे मैं कहना चाहूंगी कि क्या ऐसी टूल से ऐप से बच्चे हमारे अपने फिजिकल एक लर्निंग से टीचर से दूर नहीं होते जाएंगे कि जब उन्हें सारी चीज़ें नेट पे अवेलेबल होंगी लाइक चैट GPT, तो इसका कोई एक मतलब सोल्यूशन ऐसा भी हो कि फिजिकल जो लर्निंग है उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस रह जानी चाहिए। जी सर। That is very important point and very good question. Thank you for that question. अलबत्ता इसके अंदर जब मैं इस तरह की कोई बात करता हूँ तो मेरी अपनी के लोग आने के बाद थोड़ी सी एक कोशिश जो होगी वो हमें करनी पड़ेगी बीचर के, हमें थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कम से कम उस लेवल से आगे जाना पड़ेगा। स्टूडेंट कभी भी हमारे पास उस आएगा उसे हमसे कोई जरूरत होगी, हमसे कोई काम होगा। अगर वो AI उसकी सारी जरूरतों को फुलफिल कर रहा होगा तो डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट के स्टूडेंट को हमारी जरूरत खत्म हो जाएगी, वो हमारे पास नहीं आ रहा होगा। बट जब हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस आई एम टीचिंग द कोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ऑफ GC यूनिवर्सिटी। सो यहाँ
कोर्सेज वो टीच किए जा रहे हैं, अगर नहीं कर रहा और जो उसके अंदर लेटेस्ट ट्रेंड्स वगैरह हैं उनके साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर रहा, तो अल्टीमेटली द टाइम विल कम कि स्टूडेंट्स की नीड अगर कहीं और से पूरी हो रही होगी तो वहां पर चले जाएंगे। सो यस, हमें अपने आप को अपग्रेड करने की जरूरत है, और अगर हम अपने आप को अपग्रेड कर लें तो एक चीज करता हूँ, ये हमेशा हमें जहन में रखनी चाहिए, दैट वी आर ह्यूमंस एंड वी आर द डायरेक्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। जो इंटेलिजेंट मशीन्स हैं वो प्रोग्राम्स हैं, कंप्राइज प्रोग्राम्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं। सो तो एवोल्यूशन की फास्ट पेस के ऊपर नहीं होती जितने इवॉल्व हो रहे होते हैं। सो मशीन्स हमसे आगे कब निकलेंगी, स्टूडेंट्स को हमारी जरूरत कब खत्म होगी, जब हम अपनी एवोल्यूशन को स्टॉप कर देंगे। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे तो यस, द फियर इज वेरी मच नेचुरल एंड वेरी मच ट्रू। हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। सर गजनफर महमूद प्लीज, गवर्नमेंट कॉलेज चिश्तियां से। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है या सजेशन कह लें कि प्राइवेट इदारों ने ना बच्चों को लिंक्स दिए होते हैं, वहां से उनको लेक्चर मिल जाते हैं, सारी चीजें जो है उनमें जो भी मतलब पिक्स हैं या जो भी चीजें उसमें ऐड होती हैं वो सारे उनको लिंक्स होते हैं उनके पास जाए। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में या एचईडी में अगर ये इस तरह से हो जाए, हम भी बच्चों को इस तरह सी चीजें दे दें जिनसे उनको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाए या उनके लेक्चर बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो जाए, तो इसमें कोई काम हो रहा है या इसमें कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है सर प्लीज? सर इसके लिए मेरे ख्याल में एचईसी या एचईडी या बोर्ड या डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस इनमें से किसी की हेल्प की आपको जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड कि आप अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाएं और उसके अंदर अपने लेक्चर्स अपलोड कर दें एंड वो लिंक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। सो इंस्टेड ऑफ कि हम वो सारी चीजें बोर्ड के ऊपर और एचईडी के ऊपर डालना शुरू कर दें, अगर हम खुद से ये नॉलेज जनरेट करना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू। There is distortion from someone's side. Sir, Walaikum time is Assalam running ji. out. Can I wind up? जी ओके, सो वी कैन वाइंड अप इफ देयर इज नो फर्दर क्वेश्चन। स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा जो एडमिन्स हैं उनके साथ, एंड यू कैन गो थ्रू दीज स्लाइड्स, और इफ यू वांट टू गेट इन कांटेक्ट विद मी, सो यू ऑल आर वेलकम के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मैं आप में से किसी के भी कोई काम आ सकूं तो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much.